السلام علیکم۔ پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ ریونیو سدسو کے تحت داخل کردہ تمام درخواستوں کی جون کے اواخر تک یکسوئی، وزیر مال کا تیقن۔ آئرن اور کی کانکنی کے لیے ایک کمپنی کو 5342 ایکڑ اراضی فراہم کرنے حکومت کا فیصلہ۔ ٹولی چوکی میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا قتل کر دیا، جائیداد کے تنازع میں بحث و تکرار کے بعد قتل۔ ایسار نگر میں وظیفہ یاب ملازم کے گھر سے 63 تولے کے طلائی زیورات کا سرقہ۔ اور 2.5 کروڑ روپے مالیتی مصروفہ طلائی زیورات فروخت کرنے کی کوشش، راجستھان کے 2 افراد گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر مال رگھویرا ریڈی نے تیقن دیا ہے کہ ریونیو سدسو کے تحت داخل کی گئی تمام درخواستوں کی جون کے اواخر تک یکسوئی کر لی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 27,847 دیہاتوں میں سدسو کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا، جس کے لیے متعلقہ عہدیدار قابل مبارکباد ہیں۔ سیکریٹریٹ میں ضلع کلکٹرز اور عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران وزیر مال نے کہا کہ چونکہ حکومت نے ریونیو سدسو کا اہتمام پوری تیاری کے ساتھ کیا تھا، اس لیے 10 لاکھ درخواستوں کے من جملہ 3,20,000 درخواستوں کی بر وقت یکسوئی کر لی گئی، جبکہ دیگر 6 لاکھ سے زائد درخواستوں کی یکسوئی 3 مہینے کے اندر اندر کر لی جائے گی۔ رگھویرا ریڈی نے بتایا کہ سدسو کے دوران 19,587 URO دفاتر قائم کیے گئے، جو ایک کارنامہ ہے۔ పోయిన సంవత్సరం మనం యూనిఫామ్ గా రాష్ట్రమంతా ఏకకాలంలో జరపాలనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్న దానివల్ల పోయిన సంవత్సరం మన రెవెన్యూ సదస్సులు జరిపిన దాదాపు 6 లక్షల పైచిలకు దరఖాస్తులు కూడా రావడం జరిగింది। అందులో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఈ సంవత్సరం బాగా మనం ముందస్తు ప్రిపరేషన్ చేసుకొని జాయింట్ కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్, రీజనల్ రెవెన్యూ కాన్ఫరెన్స్ లో وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے آئرن اور کی کانکنی کے لیے راشٹریہ اسپات سنگم لمیٹڈ کو 5,342 ایکڑ اراضی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ضلع ورنگل کے گڈور منڈل میں 2,500 ایکڑ، بیارام منڈل میں 2,500 ایکڑ اور کریم نگر میں 342 ایکڑ اراضی مذکورہ کمپنی کو فراہم کی گئی ہے۔ وزیر مال رگھویرا ریڈی نے آئندہ موسم خریف سے پہلے متاثرین کو ان پٹ سبسڈی ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں 2008 کے ان پٹ سبسڈی کی 2,000 کروڑ روپے کی رقم فوری جاری کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس سلسلے میں محکمہ فائنانس نے بینکس کے ذریعے راست کسانوں کو سبسڈی ادا کرنے سے اتفاق کیا۔ بتایا گیا ہے کہ 40 لاکھ متاثرہ کسانوں کو سبسڈی کی رقم ادا کی جائے گی۔ اکاؤنٹ نہ رکھنے والے کسانوں کو فوری بینک اکاؤنٹ کھولنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اجلاس میں وزیر فائنانس آنم رام نارائن ریڈی اور وزیر زراعت کنّا لکشمی نارائنا نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے چہارشنبے کو دلی میں صدر AICC سونیا گاندھی سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق آدھے گھنٹے تک چلی اس بات چیت کے دوران کرن کمار ریڈی نے سونیا گاندھی کو ریاست کی تازہ صورتحال سے واقف کرایا۔ اس موقع پر سونیا گاندھی کے سیاسی مشیر احمد پٹیل بھی موجود تھے۔ دوسری طرف صدر PCC B ستیہ نارائنا نے بھی ریاست میں پارٹی امور کے انچارج غلام نبی آزاد سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ریاست کی سیاسی صورتحال سے واقف کروایا۔
तेलुगु देशम के रुकन असम्बली जी मुद्दु कृष्णमा नायडू ने कहा है कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के इज्जत और वक़ार को दिल्ली में रहन रख दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद से दिल्ली और दीगर मकामात पर हवाई सफ़र करने वाले किरण कुमार रेड्डी को अवाम के लिए पदयात्रा करने वाले चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के गैर कानूनी मामलों में बीच के अफराद का रोल अदा करने वाले केवीपी रामचंद्र राव की फौरी गिरफ्तारी भी ज़रूरी है। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली में सरगर्मियां जारी हैं। मीडिया से बात करते हुए दिवाकर रेड्डी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र वजीर आला और सदर पीसीसी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मुशावरतें कर रहे हैं। एक सवाल पर दिवाकर रेड्डी ने कहा कि दागदार वज़रा को रखना है या बरतरफ करना है, आला क़ियादत इस सिलसिले में फ़ैसला कर सकती है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल काबीना में तोसी का कोई इम्कान नहीं है। नामपल्ली की एक अदालत ने बंजारा हिल्स पुलिस को हिदायत दी है कि वो रियासती वज़ीर टी नागेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। ज़राए के मुताबिक अदालत ने एक एडवोकेट पर हमले के सिलसिले में नागेंद्र के खिलाफ आईपीसी की दफ़ात 147, 148, 149, 160, 307, 427 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी, मुक्तदा अफसर खान और अहमद बलाला ने अपने अपने हलकों में अम्मा हस्तम स्कीम का आगाज़ किया। इस स्कीम के तहत हुकूमत गरीब ख़ानदानों में सब्सिडी पर 9 ग़िज़ाई अजनास का पैकेज सरबराह कर रही है। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हलके के इलाके फतेह शाह नगर रियासत नगर का दौरा करते हुए अम्मा हस्तम स्कीम का इफ्तिताह किया। कायदे मजलिस का मुकामी अवाम ने वालिहाना खैर मकदम किया। अकबर ओवैसी से मुलाकात और उनकी एक झलक देखने के लिए अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। कायदे मजलिस की बकसरत गुलपोशी की गई। नौजवानों में जबरदस्त जोश खरोश देखा गया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम बेग, डॉक्टर यूसुफ नक्शबंदी, मंसूर अवलखी, समद बिन अब्दाद, खवी अंसारी और दूसरे मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान में मजलिसी रुकन असम्बली अफसर खान ने अम्मा हस्तम स्कीम का इफ्तिताह किया। इस स्कीम के तहत 9 ग़िज़ाई अजनास का पैकेज 185 रुपये में हुकूमत फराहम कर रही है। हल्का असम्बली मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया। ओएसी ग्राउंड मलकपेट में मुनक़दा तकरीब में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स की तकसीम की। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। चिवल्ला में अम्मा हस्तम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर प्रसाद कुमार, कलेक्टर ज़िला रंगारेड्डी वानी प्रसाद के अलावा रुकन असम्बली चिवल्ला ए रत्नम ने शिरकत की। इस मौके पर 9 ग़िज़ाई अजनास पर मबनी पैकेज 185 रुपये में दिए गए। प्रसाद कुमार ने मीडिया को बताया कि SC/ST सब प्लान के तहत मंजूर शुदा रकम को दर्ज फ़हरिस्त अफराद में तकसीम किया जाएगा। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम ने इल्ज़ाम लगाया है कि KCR ने तेलंगाना तहरीक को रहन रख दिया है। पार्टी हेडक्वार्टर में फोरम के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर, M नरसिम्लू और रेवंत रेड्डी ने TRS सरबराह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। M नरसिम्लू ने कहा कि तश्कील तेलंगाना का झूठा वादा करके KCR ने हमेशा इलाके के अवाम को धोखा दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलुगु देशम का कोई भी लीडर TRS में शामिल नहीं हो रहा है। रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने बताया कि 19 अप्रैल को तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम का इजलास मुनक़िद होगा। तेलुगु देशम कायदीन ने अंग्रेज़ी TV चैनल की जानिब से किए गए एक इंतखाबी सर्वे को मुस्तरद कर दिया। फोरम के कन्वीनर ई दयाकर राव ने भी TRS पर सियासी ड्रामाबाजियों का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए TRS ने तेलंगाना तहरीक को मुलतवी कर दिया है। ई दयाकर राव ने कहा कि कांग्रेस से मुफाहमत करते हुए खुफिया साजिश के तहत KCR ने तेलंगाना तहरीक को कमज़ोर किया है। उन्होंने कहा कि TRS कायदीन ड्रामाबाजियों के ज़रिए तेलंगाना के तलबा का इस्तेहसाल कर रहे हैं। दयाकर राव ने सवाल किया कि तहरीक की मौजूदा सूरत हाल पर आखिर कोदंडाराम क्यों खामोश हैं।
हैदराबाद के 964 विद्या वॉलंटियर्स को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खां की नुमाइंदगी के बाद बहाल कर दिया गया है। मजलिस टीचर्स यूनियन के नुमाइंदों ने बताया कि SSA की जानिब से शहर के तमाम विद्या वॉलंटियर्स की खिदमात मुअत्तल कर दी गई थी और उनकी अप्रैल की तनख्वाहें भी रोक दी गई थीं, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने विरासत रसूल खां को प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करते हुए सैकड़ों टीचर्स के मसाइल हल करने की हिदायत दी थी। रुकन असम्बली ने SSA के आला अहदेदारों से बात की और उन्हें कायल कराया कि विद्या वॉलंटियर्स की मुअत्तली गैर ज़रूरी है, जिस पर न सिर्फ उन्हें बहाल कर दिया गया बल्कि रुकी हुई तनख्वाहें भी जारी कर दी गईं। असातिज़ा ने मजलिसी कायदीन से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। रुकन कौंसल P वेंकट राव ने कहा है कि रियासत में हल होने वाले मसाइल को आला क़ियादत से रुजू करना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट राव ने कहा कि रियासत में बड़े ओहदे पर तकर्रुर के दौरान तवाज़ुन बरकरार रखा जाना चाहिए। दागदार वज़रा के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक़ सवाल पर रुकन कौंसल ने कहा कि वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ज़िम्मेदार वज़रा को पर्दे के पीछे क्या हुआ इससे लाताल्लुक़ी ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं है। ముఖ్యమంత్రి అంటే ఇది ఫైల్ మంత్రి ఇట్లా ఉండాలి అనేది తెలియజేయాలి. రెండో అంశం PCC అధ్యక్ష ఫుల్ ఫార్ములా వరకు మీ మీద ఆధారపడలేదు, నా మీద ఆధారపడలేదు. ఈ వాంట్స్ టు బిల్డ్ హిజ్ ఓన్ క్యాడర్. ఆ క్యాడర్ మీద ద్వారా అతను అధికారంలోకి రావాలనుకున్నాడు, లేకపోతే ఇప్పుడే వచ్చి ప్రధానమంత్రి కావాలవచ్చు. ఈ ఎంటైర్లీ ఒక డిఫరెంట్ క్యాడర్ తయారు చేసుకుంటున్నాడు. बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने तेलंगाना अवाम से अपील की है कि वो TRS को वोट देने के बजाय बीजेपी को वोट दें ताकि तश्कील तेलंगाना का मकसद पूरा हो सके। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि इलाकाई जमातों से हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। उनका कहना था कि माजी में भी तीसरे महाज का तजुर्बा नाकाम साबित हो चुका है। वेंकैया नायडू ने कहा कि अवाम बीजेपी की जानिब राग़िब हो रहे हैं। अंग्रेजी टीवी चैनल के सर्वे को मुस्तरद करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि NDA ही मरकज़ में इख्तिदार पर आएगी। పార్టీ రావాలని చూస్తున్నారు. కొంతమంది అక్కడ 10 ఇక్కడ 5 వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ అలా దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఓటు లెక్కేసుకొని మాదే పై చేయి అంటున్నారు. ఇది నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. కొత్త మోడల్ ఇది. 5 సీట్లు వచ్చేవాళ్ళు 10 సీట్లు వస్తాయని అనుకునే వాళ్ళు దేశంలో మాదే పై చేయండి. ఎట్లా అంటే అన్ని దగ్గర అటు వచ్చిన వాళ్ళందరూ వీళ్ళతో కలుస్తారని. DMK-కి ADMK-కి పడదు. कोहे मौला अली के इलाके से मकामी मुसलमानों के एक बड़े ग्रुप ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मकामी औकाफ़ी अराज़ी की हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड को मुतवज्जे करने की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि मौला अली के इलाके में औकाफ़ी अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ों के वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी को इस सिलसिले में मकामी अफराद से मुलाकात करने और वक्फ बोर्ड को मुतहर्रिक करने की हिदायत दी। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने घासी बाजार के इलाके में इंद्रम्मा कलालू प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मकामी रुकन बलदिया रंजना देवी गोयल के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने अपने हलके के इलाके गंगा नगर, मौला का छिल्ला, अमान नगर A का दौरा करते हुए आबरसानी से मुताल्लिक़ अवामी शिकायतों का जायज़ा लिया। उनके हमरा मजलिसी कोऑपरेटर्स वजाहत अली खान, वाजिद अली खान के अलावा महकूम आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। अमान नगर A में आलूदा पानी के सरबराही की काफ़ी शिकायतें हैं। रुकन असम्बली ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फ़ौरी इन मसाइल की यकसुई करें। सीवर का आउट सिटी पैकेज का जो मजलिस मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर वाइस राज सिक्योरिटी के ज़माने में जो 2000 करोड़ का काम मंजूर करवाया गया था और अमान नगर A के इलाके के अंदर जो पैकेज का काम हुआ वो काम नामुकम्मल होने की वजह से इस एरिया के अंदर काफ़ी मसाइल पैदा हो चुके हैं। यहाँ पर पोल्यूटेड वाटर आ रहा और घरों के अंदर पानी बैक मार रहा है। वो दिखलाने के लिए वाटर हाउस के अहदेदारों को जो DD सत्यनारायण साहब हैं SC और ये तमाम ऑफिसरों को लेके आकर इनका इंस्पेक्शन करवाया गया। ये लोगों ने तयफुन दिए कि 8 दिन के अंदर
कि जो यहाँ के जो भी तकालीफ है उसको दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम भी और हमारे कारपोरेटर साहब भी रोज़ाना के कामों का मायना करेंगे। जल्द से जल्द यहाँ के मुकामी लोगों को जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट रेस कोर्स कम्युनिटी हॉल में आधार कार्ड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सेंटर ने 2 कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ काम शुरू किया है। इस मौके पर मकामी रुकन बलदिया अब्दुल हक नज़ीर के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अफसर खान ने बंजारी दरवाज़ा वाक़े गोलकुंडा में इंद्रम्मा कलालू प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सरकारी अहदेदारों और साबिक़ डिप्टी मेयर और रुकन बल्दिया जाफर हुसैन मेराज के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। हल्का मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चंचलगुड़े में वाक़े मजलिस के दफ्तर में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान मकामी नौजवानों में क्रिकेट किट्स तक़सीम किए। आखिर कब होगा अक़लियती कमिश्नरेट के दफ्तर का इफ्तिताह? कमिश्नरेट का रस्मी तौर पर आगाज़ हो चुका है, लेकिन दफ्तर का क़याम तात्तुल का शिकार है। ऐलान तो कर दिया गया कि अक़लियती कमिश्नरेट का दफ्तर तिलक रोड पर कायम किया जाएगा, लेकिन इस पर अमलावरी में संजीदगी का मुज़ाहरा नज़र नहीं आता। खुद कमिश्नरेट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा हुआ है, क्योंकि कमिश्नरेट को मंजूरी देने के बाद 69 जायदादों को हरी झंडी दिखाई गई थी और पेशरफ्त सिफर है। हालांकि हुकूमत ने इन जायदादों को डेप्यूटेशन से पुर करने से इत्तेफाक किया। इतना वक्त बीत जाने के बावजूद 69 के मिनजुमला सिर्फ 4 तक़र्रुरात हुए हैं। हुकूमत की इतनी अदम दिलचस्पी ये ज़ाहिर करती है कि अक़लियती कमिश्नरेट को कारकर्द होने के लिए हुनूस दिल्ली दूरस्त। ये भी मुमकिन है कि इसको इंतखाबात तक खींचा जाए, क्योंकि हुकूमत इससे इंतखाबी फ़ायदा हासिल करने की भी कोशिश करेगी। मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए असातिज़ा ने पर्चों की जांच के मराकज़ पर एहतजाज किया। विजयनगर कॉलोनी में वाक़े स्कूल के पास लंच के वक्फे के दौरान धरना दिया गया। असातिज़ा रियासत भर में मुख्तलिफ ज़ुमरों की मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजी असातिज़ा ने बताया कि असातिज़ा की तमाम तंजीमों के साथ मिलकर आइंदा के लाहे अमल को क़तइयत दी जाएगी। दीपम स्कीम के तहत विजयनगर कॉलोनी में सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। मकामी रुकन बलदिया मोहसिना परवीन ने मीडिया को बताया कि उन्होंने 150 दरखास्तें दाखिल करवाई थी, लेकिन 90 दरखास्तों को ही मंजूर किया गया। 45 सिलेंडर्स को चारशंबे के दिन तकसीम किया गया। माबाकी सिलेंडर्स बाद में तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर नुमाइंदा कोऑपरेटर मोहम्मद मसूद भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के डॉक्टर रावरी भरद्वाज को ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। वो विजयनगर कॉलोनी के साकिन हैं। उनकी रस्मी तालीमी काबिलियत सिर्फ 8वीं जमात है, लेकिन उन्हें 3 यूनिवर्सिटियों ने एजाज़ी डॉक्टरेट्स की डिग्रियां अता की। वो 1927 में ज़िले कृष्णा के देहात मोगुलुरु में पैदा हुए थे। टोली चौकी के इलाके में एक शख्स ने अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के रहने वाले कमरुद्दीन और गाजिउद्दीन के दरमियान जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। कमरुद्दीन अपने अफराद खाना के साथ 20 दिन पहले हैदराबाद आकर टोली चौकी में रहने लगा। गाजिउद्दीन अपने अफराद ख़ानदान को महाराष्ट्र भेजने के बाद जब चारशंबे के दिन कमरुद्दीन से मिलने के लिए आए तो दोनों भाइयों में जायदाद के ताल्लुक़ से बातचीत हुई और बहस व तकरार के बाद कमरुद्दीन ने अपने बड़े भाई गाजिउद्दीन को चाकू से वार करके हलाक कर दिया और फिर हुमायूं नगर पुलिस में खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। एसआर नगर में एक शख्स के मकान से 63 तोले के तिलाई जेवरात और 8,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि एक वजीफ़याब इंजीनियर ने मंगल के दिन 63 तोले के तिलाई जेवरात खरीदे थे, जिसका मंगल और चारशंबे के दरमियानी शब ही सरखा कर लिया गया।
ذرائع کے مطابق مکان کے مالک اپنے افراد خانہ کے ساتھ بالائی منزل پر سو رہے تھے، جبکہ طلائی زیورات گراؤنڈ فلور پر رکھے گئے تھے۔ ایسار نگر پولیس نے ایک کیس درج کر لیا ہے۔ سٹی پولیس نے 2.5 کروڑ روپے مالیت کے مسروقہ طلائی زیورات کی فروخت کی کوشش کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا، جن کا تعلق راجستھان سے ہے۔ ڈی سی پی ڈیٹیکٹیو ڈپارٹمنٹ رنگا راؤ نے بتایا کہ چمپا لال راج پروہت اور ناگیندر سنگھ راج پروہت نے تقریباً 8 کلو زیورات اور 19 لاکھ روپے نقد رقم کا چنئی سے سرقہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ چمپا لال موہن لال جیولری پرائیویٹ لمیٹڈ چنئی میں گزشتہ 3 سال سے وہ کام کر رہے تھے۔ اس کے مالک نے یہ زیورات مدورائی منتقل کرنے کے لیے دیے تھے، جس کا اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے سرقہ کر لیا۔ یہ زیورات وہ حیدرآباد لا کر فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اطلاع ملنے پر سکندرآباد کی لاج سے اسے اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے قبضے سے مسروقہ اشیاء ضبط کر لی گئیں۔ اتاپور کے علاقے میں ایک لڑکا سوئمنگ پول میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ منگل کی شام وہ کرسٹل گارڈن سوئمنگ پول میں تیراکی کے لیے گیا تھا۔ 10ویں جماعت میں زیر تعلیم سمپت اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پولیس نے پانی سے لاش برآمد کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانے منتقل کر دیا ہے۔ شاستری پورم نور کالونی کے رہنے والے 45 سالہ سید ناظم الدین 7 مارچ سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کو نظر آ جائیں تو درخواست کی گئی ہے کہ ملادیو پلی پولیس کو اطلاع دی جائے۔ شنکر نگر قدیم ملک پیٹ کے رہنے والے میوہ فروش 50 سالہ محمد یوسف 14 اپریل سے لاپتہ ہیں۔ کسی کو نظر آ جائیں تو درخواست کی گئی ہے کہ چادر گھاٹ پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں نظر ڈالیں گے سرخیوں پر ایک بار پھر۔ ریونیو سدسو کے تحت داخل کردہ تمام درخواستوں کی جون کے اواخر تک یکسوئی، وزیر مال کا تیقن۔ آئرن اور کی کانکنی کے لیے ایک کمپنی کو 5342 ایکڑ اراضی فراہم کرنے حکومت کا فیصلہ۔ ٹولی چوکی میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا قتل کر دیا، جائیداد کے تنازع میں بحث و تکرار کے بعد قتل۔ ایسار نگر میں وظیفہ یاب ملازم کے گھر سے 63 تولے کے طلائی زیورات کا سرقہ۔ اور 2.5 کروڑ روپے مالیتی مسروقہ طلائی زیورات فروخت کرنے کی کوشش، راجستھان کے 2 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔